guys, Namaskar. This is Samri Sammani has come once again with a new topic, new video, and the previous topic, the previous chapter, acid, base, and salt. And with this video, and I want to go ahead with this last video, last topic, acid, base, and salts. You know very well. In the previous video, I have discussed about acid and its properties. And in this video, I have discussed and go forward. Let's move on with the base and its properties, and last topic is salt and formation of salts. Here this topic में हम पढ़ेंगे बेस और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने एसिड और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जैसा कि आपको पता है, यू हैव लर्न ऑलरेडी द लास्ट वीडियो अबाउट एसिड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड आई एम श्योर every confusion that every queries is what clear in the last video about acid and properties of acid. And in this video I have learned about base, properties of base, and salts, you know very well. Then come now in the topic with base. Let's move on. हम बात करेंगे बेस के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बेस? तो बेस, द सब्सटेंस व्हिच इज बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस. वैसे पदार्थ जिसका टेस्ट, जिसका स्वाद बिटर होता है, खारा होता है, हल्का तीखा होता है, अजीब सा टेस्ट होता है, उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को बेस कहते हैं. ठीक है. ऑन अदर हैंड एसिड, द सब्सटेंस व्हिच द टेस्ट इज सॉर, एंड द प्रॉपर्टीज, the sour in taste is called acid, the bitter in taste is called base. और नेक्स्ट चलते हैं कि बेस में और क्या क्या बातें होती हैं. तो आपको बता दें कि बेस हैज कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ एनी सब्सटेंसेस. दैट मींस टेक एन एग्जांपल about H2O, you know, H2O, hydrogen dioxide. Yeah, hydrogen dioxide, the oxygen is a base. Hydrogen, H2O, that contains hydrogen, that is called hydroxide. Hydrogen and oxygen, the combination of hydrogen and oxygen of the base is called hydroxide, that is called basic in nature. Okay, अब चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. That is combination of sodium, that is salt, Na, the symbol of sodium is called Na, and hydroxide, that is oxygen and hydrogen. ठीक है. The combination of oxygen and hydrogen, that is called hydroxide. एक बात आप याद रखिएगा ट्रिक्स के साथ, जिसे भी सब्सटेंस, जिसे भी चीज के पीछे, ठीक है, that is आगे हाइड्रोक्साइड लगा हो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड लगा हो, that is symbol that is occurs in basic. ठीक है, that is basic in nature. An example is sodium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, potassium hydroxide, etc. etc. ओके, अब हम चलते हैं आगे. अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या करना है. ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस साइड. ना बेस की प्रॉपर्टीज क्या है? We have seen in the our house daily use, you use detergent, soap, shampoos. It is a that properties is, आप अपने घर में शैम्पू यूज करते होंगे, सॉप यूज करते होंगे, डिटर्जेंट यूज करते होंगे. दिस ऑल आर कंटेन्स बेसिक इन नेचर. ओके, प्रॉपर्टीज कहता है दैट इज स्लिपरी इन टच, दैट इज सॉपी इन टच, दैट इज बिटर इन टेस्ट. और ऐसे पदार्थ जिसको टच करने, छूने में स्लिप करता हो, साबुन को छूइए स्लिपरी होगा, स्लिपिंग होगा. सर्फ जो आपके पास है, डिटर्जेंट जो है, उसको टच कीजिए, वो स्लिपरी होगा. ठीक है, शॉपी टच होगा. दिस द मेन प्रॉपर्टीज. अपार्ट फ्रॉम दिस, बेस इज गुड कनेक्टिविटी. ओके, बेस एंड एसिड इज आल्सो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन. कहते हैं आगे, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन. अभी बताया था हाइड्रोक्साइड OH, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन लेकर के चलता है बेस. ठीक है, they are corrosive. Yeah, they are main topic. Potassium hydroxide, sodium hydroxide, and calcium hydroxide is corrosive in nature whatsoever acid. This तरह से acid
क्रोसिव था। जो नेचुरल एसिड जो आर्टिफिशियल एसिड है, सिंथेटिक एसिड है, वो corrosive in nature, poisonous for the skin and our humans. On the other hand, rarely whatsoever base is also corrosive in nature. That is potassium hydroxide, sodium hydroxide, and calcium hydroxide. These are corrosive in nature. These are main properties of acid. Okay, sorry, base. उसके अलावा कहता है the base which is contains water atoms is called alkalines. Okay, alkalines. ठीक है, alkalis. तो ये भी प्रॉपर्टीज अच्छा खासा होगा। अब चलते हैं हम आगे, बेस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो बेस का यूज यानी क्षारीय एसिड दैट मींस अम्ल, बेस दैट इज इन हिंदी इन क्षारीय। ठीक है, तो बेस का यूज पहला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज हाइड्रोक्साइड। आपको पहले बताया CaOH हाइड्रोक्साइड मिला हो, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे, दैट इज सेलेक्ट लाइम, या दैट इज रियली सेलेक्ट लाइम, लाइम वाटर, सेलेक्ट लाइम याद रखिएगा, नॉट इज लाइम जूस, नॉट इज लेमन वाटर, नॉट इज इट लेमन जूस, it is not same with the lemon juice and lemon water. This is so far, this is so variable. Select lime is calcium hydroxide. This calcium hydroxide is used the manufacturing of cement. Okay, it's the manufacturing of cement. Apart from this, it is used for whitewashing of your wall of your buildings. आप अपने घर को white washing करवाते हो, पेंट करवाते हो ना, ठीक है, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, चूना करवाते हो, व्हाइट वॉशिंग करवाते हो, तो उस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सीमेंट प्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। यूटिलाइज एसिड इन वाटर सप्लाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहता है एसिड बर्न्स एंड एंटीबायोटिक फूड पॉइजनिंग इन द, इट इज मिक्स्ड विद सैंड एंड वाटर टू मेक मोर्टर व्हिच इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इट इज आल्सो फॉर्म्स ऑन द फील्ड। बताया ना, सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी गिरता है। द मिक्सिंग ऑफ सल्फर ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद इन एसिड रेन, that is used for calcium hydroxide. On the other hand, move on for next hydroxide, next base, that is sodium hydroxide, NaOH. Sodium, that is normal a common salt. इससे आगे पढ़ेंगे salt के बारे में। In this sodium hydroxide is also known as caustic soda. Yeah, caustic soda that is used for manufacturing of soap. बिल्कुल caustic रहता है साबुन बनाने के लिए, इसीलिए साबुन जो है, शॉप जो है, हमेशा याद रखिएगा, द सोप इन टच दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, caustic soda that is sodium hydroxide. It is used in petroleum refining in making medicines along with पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के लिए इस तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं। उसके अलावा मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा दैट्स द डोमेन टू रेयन फाइबर, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेयन फाइबर। आपको द प्रीवियस चैप्टर आई हैव लर्न ऑलरेडी अबाउट फाइबर फ्रॉम फैब्रिक, दिस चैप्टर अबाउट रेयन फाइबर को बनाने के लिए खास करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जरूर किया जाता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम के बारे में भी और सोडियम के बारे में भी। अच्छा, 2 टॉपिक्स एंड क्लियर इन दिस वीडियो। चलते हैं आगे। अगला है हमारा potassium hydroxide, that is K, potassium for K, the symbol of potassium is KOH hydroxide, potassium hydroxide. This is used, it is used for alkaline, yeah बिल्कुल, this में potassium hydroxide is strong alkaline chemicals, बिल्कुल chemical and it is corrosive in nature. I have already told about this. It is available in pellets from flax, also known as potassium hydrate and caustic potash, बिल्कुल खाद बनाने के लिए, पोटास बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मुलास, केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके अलावा जो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन, आपके हेयर में, आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, ठीक है,
कहीं कहीं फुंसी फोड़ा वगैरह, तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा करके दवा बना करके आप इस तरह के फंगल इन्फेक्शन वाले मेडिसिन को ले सकते हैं। ठीक है, डैंड्रफ प्रॉब्लम्स आपके हेड में हो, ठीक है, और कहीं भी कोई भी ऐसा फंगल इन्फेक्शन आपके चेहरे, आपके बाल, आपकी स्किन पे हो, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स मिक्सिंग आप मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, हाइड्रोक्साइड है, OH है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूटिलाइज्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अपच की शिकायत हो, ठीक है, पेट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं, इट कम्स इन अ टैबलेट एंड लिक्विड टू कैन बी टेकन थ्रू माउथ। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप लेते होंगे, डाइजेशन वगैरह लेते होंगे, जैसे आपके पेट में गैस वगैरह होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ही, जैसे कि आप इनो वगैरह लेते हैं, तो उस तरह की चीज़ों में, उस तरह के लिक्विड में जो कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ महसूस करवाता है, द फील रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फुल इन दिस टाइप ऑफ लिक्विड एंड टैबलेट्स medicines। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट इज not corrosive, is very normal. Ammonium hydroxide and magnesium hydroxide, it is normal and it is natural, it is a weak base। ठीक है, apart from other hand, I've already told about this, potassium hydroxide, calcium hydroxide and sodium hydroxide is strong base and this is corrosive and this is strong basis for human beings and nature। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम के बारे में हो गया। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में। ठीक है, इसके टैबलेट्स आते हैं, लिक्विड्स वगैरह आते हैं, बॉटल्स वगैरह आते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव इंक स्पॉट्स। बिल्कुल सही बात है, इंक स्पॉट फ्रॉम योर शर्ट्स, टी-शर्ट्स एंड क्लॉथ्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कभी कभी देखते होंगे, आपके शर्ट, आपके कपड़े पे इंक गिर जाता है, उसके स्पॉट्स लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके, ठीक है, आप इस तरह के इंक और स्पॉट्स को, इंक के धब्बे को, स्याही के धब्बे को हटा सकते हैं, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज आप आराम से कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ठीक है, अब आप कहता है कि विंडो पैंस, बिल्कुल विंडो क्लियर के लिए, शीशे, खिड़कियों को साफ करने के लिए इसका हम यूज खास करके करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कहता है आगे, उसके अलावा इसका और भी यूज है कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, बिल्कुल कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसका यूज करते हैं, क्रीम्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो ये दिस टाइप ऑफ, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स में याद आया। ठीक है, वी यूज दिस टाइप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन यूज फर्टिलाइजर्स केमिकल्स। ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ बेस इज very clear about his uses, about his properties। अब चलते हैं हम लोग एक मेन टॉपिक। What is the main topic here? Main topic, how can be recognized? How can you find it? This is base, this is acid। हम लोग कैसे जानेंगे? अगर दो चीज यहाँ पे रखा है तो कैसे जानेंगे ये बेस है, ये एसिड है? ठीक है, तो for this type of confusion, clear the confusion, a main actor is act in this type of confusion, that is indicators। Yeah, indicators। हम इंडिकेटर्स, सूचकांक की सहायता से we can find very easily that is acid, that is base। Okay, आप देखते होंगे, we have already seen in the house in your electrical board an indicator switch, indicator bulb is fixed in the board। आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड में इंडिकेटर दिया रहता है, रेड लाइट दिया रहता है, तो आपको मालूम करने के लिए दैट द करंट इज अवेलेबल इन योर हाउस, इन योर होम, इन योर बोर्ड। दैट सेम प्रॉपर्टीज है, यही इंडिकेटर का काम यहाँ पे है, सेम एज इट इज। अब कैसे करता है? इंडिकेटर्स भी बहुत तरह के होते हैं, किस तरह के, कैसे कैसे? इंडिकेटर्स हैज टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। Natural and synthetic, natural and man-made, there are two types of indicators, प्राकृतिक रूप से भी और मानव निर्मित रूप से। This type of indicator, जिस तरह से base, two types of base, natural base and artificial base। First base is प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, तो क्षारीय था प्राकृतिक रूप से, and other types of bases prepared in the laboratories from chemical reactions, that is potassium hydroxide, calcium hydroxide, these type of bases available in the
laboratories. Okay. In the other hand, indicators are also for two types: natural and artificial. First, natural is which occur in nature, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं. That is turmeric, litmus, red cabbage, उसके अलावा China rose. This type of indicators is occur in nature and it is not corrosive in nature and it is a natural indicators, you know. In the other hand, phenolphthalein or mangoes, ठीक है, phenolphthalein and magnesium. This is called artificial या synthetic indicators. These type of two indicators, phenolphthalein and methyl orange are artificial indicators. समझ में आ गया? दो तरह के इंडिकेटर्स हैं, सूचक है. पहला प्राकृतिक में कौन? टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, उसके अलावे चाइना रोज, गुड़हल का फूल जिसको बोलते हैं, रेड कैबेज. और दूसरी तरफ से जब अप्राकृतिक है, मानवीय है, मानव निर्मित है, सिंथेटिक है, वो है फिनोल्फिथलीन और मिथाइल ऑरेंज. अब इन दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं इन दोनों के बारे में किस तरह से दिया गया है. हम चलते हैं लिटमस के बारे में. व्हाट इज लिटमस? लिटमस अकर्स फ्रॉम लाइकेन्स. लिटमस लाइकेन से मिलता है. लाइकेन कैसे? लाइकेन अकर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. देन लाइकेन्स ट्रांसफर लाइकेन्स सीक्रेट टाइप्स ऑफ लिटमस एंड पाउडर. लाइकेन्स कहता है एल्गी और फंगी के फॉर्मेशन से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म निकलता है वो लाइकेन्स होता है, और लाइकेन्स के पौधे से यानी लाइकेन्स से लिटमस हमें प्राप्त होता है. लिटमस हैज टू टाइप्स. लिटमस आपको एक सॉल्यूशन में मिलेगा, एक सॉल्यूशन में. लिटमस हैज टिंटेंस, लिटमस हैज अकर्स इन अ सॉल्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, लिटमस इज available in market on the paper. Litmus paper. Litmus paper has two colors: red litmus paper and blue litmus paper. And litmus solution has one color, single color, is a pink in color, a purple in color. You know very well its contents. Not pink, sorry, या purple in color. ठीक है. लिटमस जो है आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो जो सोल्यूशन होगा वो पर्पल कलर का होगा, और दूसरा लिटमस जो पेपर आता है वो लिटमस पेपर has two colors, that is red, second is blue. अब उस लिटमस को लेकर के हम पहचानेंगे, we can recognize this type of what is base and acid in nature. पहला है बेस को पहचानने के लिए किसी भी लिटमस को, वो पर्पल कलर का जो लिटमस है उस पर अगर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को गिराते हैं, ठीक है, ज्यादातर खास कर इस एक्सट्रीमली लिटमस पेपर इज ब्रॉड एंड वाइड इन यूज. लिटमस पेपर का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है. ठीक है, तो लिटमस पेपर को लेते हैं. उस लिटमस पेपर पर हम पहला काम करते हैं, बेस को चेक करते हैं. सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन को चेक करते हैं, जांचते हैं. तो बेसिक सॉल्यूशन को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेड लिटमस पेपर लेंगे. ठीक है, वी टेक अ रेड लिटमस पेपर. लाल लिटमस पेपर को लेकर के किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को गिराते हैं. सर्फ हो, साबुन हो, डिटर्जेंट हो, शैम्पू हो, सॉफ्ट सॉल्यूशन हो, किसी भी सॉल्यूशन को हम उस रेड लिटमस पेपर पर टच करवाते हैं, फॉलो करते हैं, गिराते हैं. अब दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन टर्न इट्स कलर इनटू ब्लू. ओके, व्हेन the reaction between the red litmus paper from the basic and the color of this red litmus paper turn into blue, that is recognized very easily, that is base. बेस का कलर अगर ब्लू हो जाए, उस रेड लिटमस पेपर का कलर अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराने के बाद अगर ब्लू हो जाए तो आप आसानी से समझ लेना कि ये बेस है. अगर उसके अलावे आप ब्लू लिटमस पेपर पर किसी भी सॉफ्ट सॉल्यूशन को, किसी बेसिक नेचर वाले को गिराते हो, दैट नो चेंज इन कलर एज सेम एज इट इज, दैट इज सेम एंड इट इज नॉट एनी रिएक्शंस. तब कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तब आप मालूम पड़ेगा दैट इज बेस. अगर ब्लू लिटमस पेपर पर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को गिराते हो, तब अगर कलर कोई चेंज नहीं करता है, तब भी आप जानोगे दैट इज बेस. क्लियर हो गया? दैट इज कंफ्यूजन. तो ये हो गया लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन को चेक करने के लिए. अब हम चेक करते हैं एसिड को. किसी भी ब्लू लिटमस पेपर पर किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को गिराने पर
अगर दैट कलर टर्न इनटू रेड दैट इज इन एसिडिक इन नेचर, अगर उसका कलर रेड हो जाए, लाल हो जाए, दैट्स यू रिकॉग्नाइज दैट इज एसिड, ये अम्ल है। अगर किसी भी रेड लिटमस पेपर पर किसी भी एसिड सॉल्यूशन को गिराओ तब उसका कलर अगर चेंज नहीं होता है तो आप जानना ये एसिड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, अगर समझ में ना आए दैट्स रिवाइंड दिस वीडियो एंड वंस अगेन यू कैन वॉच दैट क्लियर योर कंफ्यूजन। वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो को बार बार देखिए, दैट इज बिकॉज इट्स वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर क्लास एंड फ्यूचर ऑल्सो। फिर से थोड़ा सा बता देते हैं आपको, कोई भी लिटमस पेपर ले लीजिए, रेड या ब्लू। चलिए पहले बेस को देखते हैं। बेस को चेक करने के लिए, बेसिक को चेक करने के लिए रेड लिटमस पेपर पर किसी बेसिक सॉल्यूशन को, सर्फ और साबुन उसको गिराइए। अगर उसका कलर ब्लू हो जाए, ब्लू का मतलब बेसिक है, रेड का मतलब एसिड है। क्लियर हो गया, ठीक है। किसी भी ब्लू लिटमस पेपर पर कोई एसिड को गिराइए, तब उसका कलर अगर रेड हो जाए तब वो एसिड है। ओके, तो ब्लू के साथ बेस हो गया, रेड हो गया तो एसिड हो गया। अगर ब्लू लिटमस पेपर पर किसी भी बेस को गिराइए तब कलर चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर पर किसी भी बेस को गिराइए तब कलर चेंज होगा ब्लू में। अगर चलते हैं एसिड के पास, एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर पर किसी भी एसिड को गिराइए तब उसका कलर अगर रेड हो जाए, दैट यू नो दैट इज एसिड। अगर रेड ही लिटमस पेपर पर किसी भी एसिड को गिराते हैं तब उसका कलर अगर चेंज नहीं होता है तब जानिएगा ये भी एसिड है, यानी कि रेड पर चेंज नहीं करेगा। तो एसिड अगर रेड हो जाए तो एसिड है, ब्लू अगर बेस हो जाए, बेस अगर ब्लू हो जाए तो इट इज बेस है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? दैट्स नो एनी कंफ्यूजन, नो एनी क्वेरीज इन दिस वीडियो, आई डैम एंड प्रीटी श्योर। अब चलते हैं हम लोग आगे टर्मरिक पेपर के। टर्मरिक क्या है? टर्मरिक एज इंडिकेटर इट्स अ नेचुरल, आपको पहले बताया। टर्मरिक इज येलो इन कलर। आपको देखा होगा आपके सर पर दाल या कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ गिर जाता है और वो यहाँ पर येलोइश कलर हो जाता है। अब उस येलोइश कलर पर, उस दाल गिरे हुए कपड़े पर सॉफ्ट रगड़िए, साबुन के को रब कीजिए। That's the color of this type of shape as red, red, red. धीरे धीरे लाल 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 होता चला जाए, ठीक है, तब समझिएगा that is basic. After that, keep washing again and again and again. That is color also that's yellow color. फिर से टर्न पूरा येलो हो जाए तब समझिएगा ये भी बेस है। चलते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे कहते हैं। Turmeric is an other natural indicator. It is bright yellow dry obtained in powder form. बिल्कुल powder form में होता है। Yellow to red, आप कहता है it is used and indicators in the form turmeric paper. It changes its color from yellow to red. बिल्कुल सही बात है। किसी भी कपड़े पर कोई भी अगर येलो गिर जाए, उस पर अगर साबुन रगड़िए, येलो कहने का मतलब टर्मरिक, वही हल्दी गिर जाए, साबुन रगड़िए, इसमें हल्दी की मात्रा हो, ऐसे इंडिकेटर चेक करने के लिए। अगर रेड में चेंज हो जाए दैट इज कसिंग नेचुरल इंडिकेटर्स एंड बेसिक। अब चलते हैं आगे, कहता है इसमें और इट डज नॉट चेंज इट्स कलर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एन एसिड और अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर ये एसिड के संपर्क में आता है, अगर ये नींबू के संपर्क में है, इस नींबू आता है एसिड संपर्क में आए तब कलर चेंज नहीं करेगा। साबुन के संपर्क में आएगा तो चेंज करेगा, बिल्कुल धीरे 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 रेड हो जाएगा। दैट्स नोटिस दैट। ओके, तो ये हो गया। तो दिस इज टर्मरिक सॉल्यूशन, दिस इज नेचुरल इंडिकेटर्स। आप चलते हैं थर्ड नेचुरल इंडिकेटर से, चाइना रोज। दैट इज चाइना रोज एंड पेटल ऑफ चाइना रोज इज अ प्रिपरेशन बाय सब। कैसे? चाइना रोज इज एन फ्लावर, पेटल होता है, फ्लावर होता है, फूल होता है। कैन बी यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वार्म वाटर। गर्म पानी में चाइना रोज के पेटल्स जो हैं, उसकी गुड़गुड़ के जो पत्ते हैं उसको डालिए, डालने के बाद उस सॉल्यूशन को बनाइए, बनाने के बाद वो हल्का क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। चाइना रोज बिकॉज आफ्टर फ्यू मिनट्स इट इज प्रिपेयर्ड एंड इज यूज्ड फॉर एन इंडिकेटर्स, ठीक है। इट टर्न्स कलर इनटू एसिडिक डार्क पिंक, गहरा पिंक कलर का हो जाएगा। अब इसे चेक करने के लिए इसमें क्या कीजिए, दैट बेसिक सोल्यूशन इज ग्रीन। इसमें अगर कोई बेसिक सोल्यूशन गिराइएगा, बेसिक सोल्यूशन को रिएक्शन करवाइएगा तो दैट्स पिंक कलर टर्न इनटू ग्रीन कलर, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक सोल्यूशन। अगर वो पिंक कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाए दैट इज कॉल्ड बेसिक। ओके, नॉट एन एसिडिक, दैट इज बेसिक। दैट इज क्लियर अबाउट चाइना रोज, अबाउट लिटमस पेपर, अबाउट टर्मरिक पेपर, दैट इज क्लियर।
Last and next one is artificial man-made indicators. Phenolphthalein. Phenolphthalein is a symbolic indicator, synthetic indicators, and changes its color into basic medium. It is colorless. बिल्कुल ये कलरलेस होता है. अब इसको चेक करते हैं. Phenolphthalein is colorless, you know it. ठीक है. Acidic solution and turn pink in basic solution. अगर उस कलरलेस वाले, it's a magical trick for phenolphthalein to check the acidic solution and basic solution, you know. अगर उस एसिडिक सोल्यूशन को चेक करने के लिए फिनोल्फथलीन में कोई भी एसिडिक सोल्यूशन मिलाइएगा तो अगर उसका कलर चेंज नहीं होगा, यानी कलर चेंज ना होने के बाद सेम एसिड इज लाइक कलरलेस ही रहे, देन यू नो वेल इट इज एसिड. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन अदर हैंड, व्हेन यू ऐड any basic solution into phenolphthalein, that color changes into pink color. अगर उसका कलर चेंज होकर के पिंक हो जाए, ठीक है, टर्न इनटू पिंक, दैट यू नोटिस दैट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, अगर उसका कलर बेसिक मिलाने के बाद, कोई भी क्षारीय वस्तु को मिलाने के बाद कलर चेंज होकर के बेसिक पिंक हो जाए तो आप समझिएगा ये बेसिक है. अगर कलर चेंज ना हो, कलरलेस ही रहे, तो आप समझिएगा ये एसिडिक है. दैट इज क्लियर. And last one is methyl orange. This is orange in color, you know, and it's change color into acidic medium. ठीक है, it is synthetic indicates change its color into an acidic medium. ये अपना कलर जब एसिडिक हो तो चेंज कर देता है. ठीक है, इसके चार्ट में आपको दिया गया है, आप इसको देख भी सकते हैं. जब एसिड में डालने के बाद इसका कलर रेड हो जाएगा. ठीक है, जब एसिडिक रहेगा तो इस मिथाइल ऑरेंज में अगर कोई एसिडिक नेचर मिलाया जाए, एसिडिक सोल्यूशन को मिलाया जाए, इट्स कलर टर्न इनटू रेड, दैट इज एन एसिड. एंड द बेस में मिलाने के बाद कलर चेंज नहीं होता है, इट इज कॉल्ड बेसिक. दैट इंडिकेटर्स हैज क्लियर नाउ. ठीक है, और लास्ट हमारा है सॉल्ट के बारे में. व्हाट इज सॉल्ट एंड हाउ सॉल्ट इज फॉर्म्स. Salt, very 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 clear. Salt is formed with the reaction of acid and base. Salt कैसे बनता है, इससे पहले यहाँ याद आया थोड़ा सा हम एसिड के बारे में बताते हैं. ठीक है, एंटासिड. व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड दैट यू नो when you feel indigestion problem in your stomach, that you take a Dizine, that you take tablets and any liquid फॉर योर इंडाइजेशन. अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम हो, तब उस समय आप कोई ऐसा डाइजिन जरूर लेते होंगे, कोई इनो वगैरह लेते होंगे. उस समय अगर वो रिएक्शन करके आपको ठीक कर दे तो वो एंटासिड होता है. यानी कि एंट का मतलब एंटी करना, मार देना. एसिड को, अम्ल को मार देता है, खत्म कर देता है आपके पेट में. खत्म करने के बाद तब वो एसिडिक या एंटासिड कहलाता है. जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज एंटासिड में ही किया जाता है. ओके, एट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट यूज इन एंटासिड्स फॉर डाइजीन एट विच चेक इन अनडाइजेशन प्रॉब्लम इन स्टमक. ओके, दैट्स क्लियर. अब चलते हैं हम लोग सॉल्ट के बारे में. दैट इज सॉल्ट. सॉल्ट जो है एसिड और बेस के रिएक्शन के द्वारा निर्माण किया जाता है. The solution, that is reaction that you know, it is neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction, यानी न्यूट्रल कर देता है किसी भी रिएक्शन को. एसिड को और बेस को रिएक्शन करवाने के बाद हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है. कैसे? ले लेते हैं एसिड, कराते हैं रिएक्शन. एसिड लेते हैं, that is show your screen. एसिड लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद लेते हैं बेस, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, HCl लेते हैं. उसके बाद क्या लेते हैं? NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. ओके, HCl ले लिए. HCl के बाद हम लोग क्या ले लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए. HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, दोनों को करवाते हैं रिएक्शन. अब देखिए कैसा होता है. अब क्या होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, अब वो देखिएगा कि हम लोग HCl लेकर के, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करवाते हैं आप अपने स्क्रीन पर भी देखिएगा. और यहाँ मैं बताता हूँ. HCl लिए प्लस NaOH लिए. तो अब क्या किया, वो जो वहाँ से HCl में से Cl उठ गया, HCl में से Cl उठा और उधर से
NaOH में से Na उठा, सोडियम उठा, सोडियम दैट सिंबल इज Na। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोराइड उठा, ठीक है, क्लोराइड उठ करके कहाँ गया, सोडियम के पास, Na के पास। Na और Cl अलग हो गया, यानी NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, कॉमन सॉल्ट बन गया, और बच गया कौन, H बच गया, H प्लस OH बच गया। कौन सा OH, वो जो हमारे पास NaOH वाला था, हाइड्रोक्साइड था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था। तो अब कौन बचा, हाइड्रोजन एक तरफ बचा, दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड बचा। तो कौन बचा, दो हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो H2O हुआ। दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है। तो एक तरफ क्या मिला हमें, कॉमन सॉल्ट मिला, NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरी तरफ क्या मिला, H2O मिला, वाटर मिला। दैट्स वेरी सिंपल, क्लियर एंड क्वाइट कंफ्यूजन। मैं उम्मीद करता हूँ सारे कंफ्यूजन इस टॉपिक, इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। इस सॉल्ट के बारे में भी, एसिड एंड बेस के बारे में भी, इंडिकेटर्स के बारे में भी, सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा फिर से बताता हूँ कि HCl को ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं, प्लस NaOH यानी कि बेस को। एसिड प्लस बेस इज कॉल्ड टू सॉल्ट फॉर्मेशन प्लस वाटर फॉर्मेशन। तो HCl में से Cl उठ गया, उधर से NaOH में से Na उठ गया, यानी सोडियम उठ गया, तो Na और Cl मिल गया आपस में, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। और अब कौन बचा, H बचा, यानी कि हाइड्रोजन बचा। उधर कौन बचा, प्लस में OH बचा, यानी कि हाइड्रोक्साइड बचा। तो कौन बन गया, H2O बन गया, यानी कि वाटर बन गया। तो सोडियम क्लोराइड अलग हो गया और वाटर भी बन गया, नमक भी बना और पानी भी बना। दैट इज clear confusion, and this topic, that's all. Any topic is not remaining right now in this video, and I hope any confusion, that's remind your video and watch once again and again, and every confusion is clear right now. ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Meet once again in next video. Till then, bye bye, take care, नमस्कार, good day.